بٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگی بجلی سے ستائے کراچی کے شہریوں کو کے الیکٹرک کا ایک اور جھٹکا۔ صارفین کے لیے ₹1.52 فی یونٹ اضافی چارج کی منظوری عوام انتظامیہ پر برس پڑے۔ کہتے ہیں بجلی آتی نہیں لیکن بھاری بھرکم بل کی ادائیگی بر وقت طلب کی جاتی ہے۔ حکومت مہنگائی کے بم گرا کر غریب عوام کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ۔ شہر قائد کے باسی کے الیکٹرک کے رحم و کرم پر مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی نوید سنا دی گئی۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے اضافی سرچارج لگانے کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمتوں پر ₹1.92 فی یونٹ سرچارج عائد کرنے کی منظوری پر شہری انتظام بجلی آتی نہیں لیکن بھاری بھرکم بل کی ادائیگی بر وقت طلب کی جاتی ہے۔ حکومت مہنگائی کے بم گرا کر غریب عوام کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بالکل غلط ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بجائے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی سستائی ہو، ملک میں ہمارے ہر چیز سستی ہو، بجلی سستی ہو، گیس سستی ہو۔ اس حوالے سے یہی حکومت سے ایک ہی وہ ہے کہ حکومت کو تو جتنا بھی بول دو آپ کہ کم ہے، ان کو غریب دکھتا ہی نہیں ہے، غریب کو انہوں نے مار دیا ہے۔ عوام کو نچوڑ رہے ہیں، بس اور کیا کہیں گے، عوام غریب عوام کو مار رہے ہیں، اس سے اور کیا کہنا ہے ہمیں۔ بجلی مہنگی، تیل مہنگا، ہر چیز مہنگی۔ کہ الیکٹرک صارفین پر سرچارج دسمبر 2023 سے نومبر 2024 تک لاگو رہے گا۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ سرچارج عائد کیے جانے کا حتمی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، خبردار۔ اب سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں سستی دکھانے پر ہائی کورٹ برہم۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ عدالت نے ضلع شرقی وسطی کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈز نمبر نوٹ کر لیے۔ احکامات پر عمل درآمد تک افسران کے شناختی کارڈ بلاک رہیں گے۔ بار بار احکامات اور تنبیہ کے باوجود ایس پی سی افسران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس اسکول ڈی سیل کرنے سے متعلق اسکول مالکان کی استدعا مسترد کرتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ترکیہ کو ایجوکیشن سٹی بنانے کے لیے راضی فراہم کرنے کی پیشکش کر دی۔ مقبول باقر سے کونسل جنرل ترکیہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ کونسل جنرل ترکیہ دونوں ممالک کے درمیان طلباء کے اسکالرشپ پروگرام کی بہتری پر مطمئن ہے۔ مقبول باقر نے کہا رواں برس 163 پاکستانی طلباء کو ترکیہ میں اسکالرشپ دی گئی۔ مقبول باقر کا کراچی میں ترکیہ کے ایجوکیشن کونسل کی تعیناتی پر۔ ناظرین، سندھ میں تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو؟ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کے تعلیمی بورڈ کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ اہم عہدوں پر تعینات کئی افسران کی اکھاڑ پچھاڑ، کئی بورڈز کے چیئرمین، سیکٹری اور ناظم امتحانات تبدیل کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیم کی بہتری کا عزم، تعلیمی بورڈز میں بڑے پیمانے پر تبدیلی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے سیکرٹری کاشف صدیقی کو بھی عہدے سے ہٹا کر انٹر بورڈ کراچی میں اصل عہدے پر واپس بھیج دیا۔ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے چیئرمین، سیکرٹری اور ناظم امتحانات کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ٹیکنیکل بورڈ کے چیئرمین مسرور احمد شیخ کو گھر بھیج دیا گیا۔ سیکرٹری ٹیکنیکل بورڈ اکرم سمو کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اکرم سمو کو اپنے اصل محکمے انسٹیٹیوٹا میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ناظم امتحانات ٹیکنیکل بورڈ عذرا نسیم کو عہدے سے ہٹا کر ٹیکنیکل بورڈ میں اصل عہدے پر واپس بھیج۔ چیئرمین انٹر اینڈ سیکنڈری بورڈ لاڑکانہ سکندر علی میر جٹ کو اپنے اصل عہدے انسپیکٹر آف انسٹیٹیوشن پر واپس بھیج دیا گیا۔ پروفیسر جان محمد ملک کو سیکرٹری اور ناظم امتحانات شہید بے نظیر آباد بورڈ سے ہٹا دیا گیا۔ احسان الہی بھٹو کو نواب شاہ بورڈ کے آڈٹ آفیسر کے عہدے سے ہٹا کر لوکل گورنمنٹ بورڈ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ چیئرمین انٹر بورڈ نسیم میمن کو واپس لاڑکانہ بھیج دیا گیا۔ نسیم میمن جون 2024 تک مدت ملازمت کا باقی عرصہ بطور چیئرمین لاڑکانہ گزاریں گے۔ 12ویں جماعت کے امتحانات میں صفر کارکردگی دکھانے والے کالجز پر نگراں وزیر تعلیم سندھ کا رد عمل آ گیا۔ رانا حسین نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کو تبدیل کرنے کا اندیا دے دیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ 12ویں جماعت کے امتحانات میں کالجز کی صفر کارکردگی پر نگراں وزیر تعلیم کو تشویش، تمام ملبہ نصاب پر ڈال دیا۔
निगरान वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने निसाब को कसूरवार करार देकर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का निसाब तब्दील करने का अंदिया दे दिया। इंटर की तालीम जो है वो क्यों हमारे बच्चे इतना ख़राब काम कर रहे हैं। पहली बात ये बेटा कि अभी तक मुझे दुख से कहना पड़ता है कि हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए निसाब पर किताबें रो रो के अब इस साल जाके तैयार करेंगे, जो बच्चे अगले साल इम्तिहान में बैठेंगे। तो निसाब जो है अगर टुकड़े टुकड़ों में बच्चों को मिलेगा, 7वीं में कुछ पढ़कर आते हैं, 8वीं में आकर फिर किताबें गायब हैं, फिर 9वीं के अंदर कोई 2 किताबें नहीं आ जाती हैं, तो ये जो सिलसिला है ये मुनासिब नहीं था। निगरान वज़ीर तालीम सिंध ने कॉलेजेस को ABC कैटेगरीज में तकसीम किए जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। बताया कि सेक्रेटरी कॉलेज सदफ अनीस को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुझे इस पर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। A, B और C के अगर कॉलेजेस हैं, ये मैं मैडम सदफ से ही पूछकर आपको इस पर डिटेल दे सकती हूँ। आप दोबारा तशरीफ़ लाएं, मैं ज़रूर आपको डेटा दूंगी कि ऐसा क्यों किया गया। निगरान वज़ीर तालीम का ये भी कहना था कि असातिज़ा को हाज़िरी यकीनी बनाने का पाबंद कर रहे हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। के इंतखाबात को शफाफ कैसे बनाया जाए, सिंध सरकार ने तमाम हसास पोलिंग स्टेशंस में खुफिया कैमरे लगाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम इरफान का कहना है कि तमाम पोलिंग स्टेशंस पर तमाम तर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद जानेंगे आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट में। शफाफ इलेक्शन की जानिब सिंध सरकार का अहम इक़दाम, हसास पोलिंग स्टेशंस पर कैमरों के पहरे। सिंध सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगले 2024 के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतजामात की तैयारियां तेज कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के अफसरान की बड़ी बैठक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में लगी। इजलास में सिंध में आम इंतखाबात के मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान ने कहा, तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सिंध हुकूमत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने कहा कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टाफ की जामे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। रिटर्निंग अफसरान समेत तमाम पोलिंग स्टाफ की तरबियत को इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिंध में कौमी असम्बली के 61 और सूबाई असम्बली के 130 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने सूबे भर में पोलिंग स्टेशनों पर जारी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की हिदायत की। कहा, सूबे में 19,200 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इंतखाबात में सूबे भर में 2,27,424 सरकारी मुलाजमीन की खिदमात ली जाएंगी। IG सिंध पुलिस रिफत मुख्तार ने बताया कि सिंध में आम इंतखाबात में 1,45,334 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आज़ाद नोहरियो, सिटी 21। जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए ताजर बरादरी भी पेश। टिम्बर मार्केट के ताजों ने 64 CCTV कैमरे लगा दिए। ताजिर शर्जील गोपलानी ने हुकूमत को बेहिस करार दिया। कहा, सेफ सिटी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, ताजिरों ने अपनी मददाब के तहत CCTV कैमरे लगा दिए। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। शहर में स्ट्रीट क्राइम का बेकाबू जिन, ताजिर बरादरी ने अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इकदाम उठाना शुरू कर दिए। टिम्बर मार्केट के दाखिली और खारजी रास्तों पर 64 CCTV कैमरे लगा दिए। निगरानी के लिए नेपियर थाने में कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बना दिया गया। मार्केट के सदर शर्जील गोपलानी ने कहा, हमारी हुकूमत बेहिस है, सेफ सिटी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। ताजिरों ने अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इकदाम उठाते हुए कैमरे लगाए हैं। देखिए, जो दौरे हाजिर के जो टूल्स हैं वो तो हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और जो चीज़ें फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट बेहिस है। आप इलेक्ट्रिक का मसला देख लें और भी चीज़ों में। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से जो है वो पाइपलाइन में आज तक नहीं पहुंचा, K4 आज तक पानी नहीं पहुंचा। तो अपनी मदद आपके तहत हमने ये स्टेप उठाया है कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ मिल के, कि थाने को हम जो है अपने तौर पर कम से कम इतना तो सपोर्ट कर दें कि इनको जो टूल्स चाहिए वो उनके पास मौजूद हों। SHO नेपियर पुलिस सज्जाद खान बोले, कम्युनिटी पुलिसिंग पूरी दुनिया में कामयाब है। CCTV कैमरे क्राइम कंट्रोल और मुल्जिमान की शनाख्त में मदद फराम करेंगे। जी, ये तो एक खुशनसीबी है हमारी कि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, और हम शुरू से यही कहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा कामयाब है। ये भी समझा कि उसी का एक हिस्सा है। जैसे सेफ सिटी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो ये भी आगे चल के नज़र ये आता है कि उसी का एक हिस्सा बन जाएगा ये। तो इससे थाने के लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। इसमें क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमें
बहुत मदद मिलेगी। ताजिर बिरादरी ने मुख्तलिफ मार्केट्स के अतराफ मजीद CCTV कैमरे भी नस्ब करने का इंदिया दे दिया है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कन्वीनियर MQM से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की है और उनसे हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौके पर जो है मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी नेक तमन्नाएं जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ है। दुआ गो है अल्लाह ताला मरहुमा को अपने दुआरे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। जी शुएब मुख्तार, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमारात के काउंसिल जनरल की सनतकारों के साथ बराह रास्त तिजारत की ख्वाहिश। बखीत अतीका रोमेती ने कहा कि सनतकारों को UAE हुकूमत के साथ बराह रास्त राब्ता होना चाहिए। काविश मेमन की रिपोर्ट। UAE का पाकिस्तान के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। इमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री आमद सनतकारों के साथ तिजारत के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। बखीत अतीक अल रुमैती ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी का मिडिल मैन या ब्रोकर के बगैर UAE हुकूमत से बराह रास्त राब्ता होना चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को फ़रोग देने के लिए ताउन करेंगे। जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वो इनकी सहूलियात गवर्नमेंट के डायरेक्ट होने चाहिए और एक है लिंक है, मैं कर चुका हूँ, एक हफ्ते से काम कर रहा हूँ उसमें। मैं इनके इंशाल्लाह डायरेक्ट कर लूँगा। जो मतलब मिडिल मैन या ब्रोकर या कोई बीच में वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब बिजनेस कम्युनिटी जो भी पाकिस्तान के वो डायरेक्ट करना UAE गवर्नमेंट का या UAE गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टर उधर ये इनकी 1-to-1 होना चाहिए। सदर काटी फराजुर रहमान बोले UAE की सपोर्ट की जरूरत है। इमाराती मार्केट खुलने से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। मैंने आज इनसे दरख्वास्त की कि जो है हमें जो है वो UAE की इस वक्त बड़ी ज़रूरत है ताकि UAE की मार्केट जो है वो हमारे लिए ओपन हो और हमारा ट्रेडर जो है वो उसको कोई निस्बतन ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिलें जो वहाँ पे इंडियन ट्रेडर या दूसरे और ट्रेडर्स हैं उनके बनस्बत। तो उस पर भी उन्होंने इंशाल्लाह ताला वो पॉइंट्स लिखे हैं जिस पे वो वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स को क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। सनतकारों और इमराती कौंसिल जनरल ने मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तिफाक किया। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नजरअंदाज, कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले। शहीद मिलत रोड की ग्रीन बेल्ट पर ट्रैफिक पुलिस ने चौकी तामीर कर ली और उस गैर कानूनी अमल पर इंतजामिया भी पुरस्रार तौर पर खामोश है। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। दुनिया भर में माहौल को बेहतर रखने और शहरियों को आसानी फराहम करने के लिए फुटपाथों पर ग्रीन बेल्ट बनाई जाती हैं, लेकिन कराची में तो जैसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये मंजर शहीद मिलत रोड, तारिक रोड, चौरंगी के हैं, जहाँ ट्रैफिक पुलिस ने बिल्कुल लब सड़क फुटपाथ पर पुलिस चौकी की तामीर कर डाली है और तामीराती काम तेजी से जारी है। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस ट्रैफिक पुलिस चौकी में अभी से मुख्तलिफ सामान भरा हुआ है और यहाँ काम करने वाले मिस्त्री को रोज की दिहाड़ी पर लाया जाता है। मुझे यहाँ अड्डे से लाए हैं, जैसे दिहाड़ीदार लोग हैं हम, तो रोजगार के सिलसिले में कभी दिहाड़ी पे काम करवाना है, तो हम दिहाड़ी पे काम करने के लिए यहाँ आए हैं। दूसरा तीसरा दिन है आज। ये नहीं पता ये क्या बन रहा है, क्या बनवा रहे हैं, इस चीज़ को हम नहीं समझते। हम अपने रोजगार से ताल्लुक़ रखते हैं। सिटी 21 की टीम को देखते ही चौकी पर मौजूद अफसरान इधर उधर हो गए। एक सादा लिबास एहलकार का कहना था कि यहाँ चौकी बन रही है और इसकी इजाज़त ली गई है या नहीं ये नहीं पता। तारिक रोड चौकी है, ये आपके सामने ये 2 कमरे बन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, अफसरान बना रहे जो एसओ साहब है यहाँ पर। तारिक रोड चौकी ये कमरे बन रहे हैं 2। कुछ अरसा कबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर भर में कायम तजावुजात के साथ साथ फुटपाथों पर बनी पुलिस चौकियां भी मिसमार कर दी गई थीं और अब इस चौकी की तामीर सरासर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। कैमरामैन हारिस के साथ महराज अख्तर, सिटी 21।
मेयर कराची ने शहर में होने वाली चाइना कटिंग का इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल पर लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले, गैर कानूनी तामीरात ने शहर का नक्शा ही बिगाड़ दिया। कहा कि लोग इत्तेहाद बनाने और तोड़ने में मसरूफ हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब ने शहर में चाइना कटिंग कराने का इल्जाम मुस्तफ़ा कमाल पर आयद कर दिया। बोले, रहनुमा MQM के दौर में शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया गया। वाज़े किया कि PP पंजाब जाकर ये कहकर वोट मांगेगी कि हमने कराची में NICVD जैसा अस्पताल कायम किया है। आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है, सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं आप, या GDA के साथ आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं नून लीग के दोस्तों से पूछूंगा कि कालाबाग डैम पे उनका क्या ख्याल है, और MQM के दोस्तों से पूछूंगा कि आपका क्या ख्याल है। मंजूर कॉलोनी खत्म नबूवत चौक पर बरसाती नाले और सेवरेज लाइन की मुरम्मत के काम के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, 246 मिलियन रुपए की लागत से इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी यहाँ के इलाका मकीनों के देरीना मसला हल करने के लिए सरगर्म है। काम चल रहा है, गो कि इस वक्त हमारी हुकूमत मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसको लगे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, और टारगेट हर 24 तक उस काम को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि एक बेहतरीन रिंग रोड की फैसिलिटी कराची की आवाम को मिल सके। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम जारी रखने का अज़म का इजहार करते हुए मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी बिला तफरीक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम करवा रही है। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगी। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस कराची ने शुगर मिल्स को टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में तलब कर लिया। ज़राए का कहना है, अगर इन शुगर मिलों की इंतजामिया इंक्वायरी के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही तो मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। टैक्स फ्रॉड करने वालों की शामद, FBR मुतहरिक हो गई। शुगर मिल्स मालिकान को सेल टैक्स फ्रॉड की तहकीकात में तलब कर लिया गया। FBR के लार्ज टैक्स ऑफिस ने तहकीकात शुरू कर दी। शुगर मिल्स मालिकान को जाली और फ्लाइंग इनवाइसिस की तहकीकात के लिए तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक शुगर मिलों से कारोबारी ताल्लुक न रखने वालों से लेन देन पर तशवीश है। शुगर मिलों की जानिब से सेल टैक्स रिटर्न में जाली रसीदें शामिल किए जाने की तलात थी। शुगर मिलों ने मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स से बचने की कोशिश की। लार्ज टैक्स ऑफिस ने 29 शुगर मिलों को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिए। शुगर मिलों को जाली और फ्लाइंग इनवाइसिस से मुतल्लिक खदशात दूर करने के लिए तलब किया गया। इब्तिदाई तहकीकात में एक शुगर मिल ने रसीद पर ब्रोकर्स के मशवरे से जारी करने का एतराफ कर लिया। ज़राए का कहना है कि अगर शुगर मिल्स इंतजामिया ने इंक्वायरी में तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। अशरफ खान, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त